Hello there, this is Dr. C.K. Narayan coming to you once again from New Trader as a part of Charts and Beyond. And today is the 15th of June, and I'm recording episode number 37. एंड एज एवर मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो अवश्य हमारा यूट्यूब चैनल में जाइएगा और वहाँ पर आपको एपिसोड्स नंबर 1 to 36 के सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे. आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज फ्रॉम एवरी रिकॉर्डिंग यू विल गेट सम वैल्यू. There may be some time sensitive things in each of those recordings, but then I try to pack in as much additional items in it as much as possible. So typically what is the thing that I'm looking at is in Charts and Beyond I'm looking at the uh, the world of news and events, right? So that is what this first picture is all about. And everything in the world, every single thing in the world affects the markets, correct? Now, affects the market. How affects the market? If you come down here, there's a trader sitting in front of the screen, all kinds of charts in front of him, and I'm sure he's got other screens with news flow and whatnot. Every one of you is sitting with WhatsApp and Telegram and websites open and money control and whatnot, television channels open. तो एक न्यूज़ का जो बम्बार्डमेंट है वो तो होते ही रहता है. ऑल ऑफ दैट गेट्स इनटू योर माइंड and influences the way you think, right? So, and this thinking then percolates through time. So that is why I have shown this hourglass. That means that there is passage of time में अपन जो सोचते रहते हैं एक दूसरे कड़ी से जोड़ते रहते हैं, and then new revelations start showing up in our mind. अच्छा, this was because of that and that is because of this. ऐसे we come up with a cause and effect relationship of many things. और उसके बाद हम current market को देखते हैं, which is here, and that is like a rolling stream of prices, and this then further influences our minds and stimulates our thinking. और ये सब कर करा के लास्ट में हम एक ट्रेड लेते हैं. वो ट्रेड जो है दैट इज अ ट्रांजैक्शन एंड दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड in the prices. So that is what my opening screen is showing you, that how do prices form on the chart. So ये है the thing with the thing. So as usual, let us go and see क्या न्यूज़ चल रहा है आज के तारीख में. आज के तारीख में न्यूज़ जो चल रहा है वो है स्पेसएक्स. अब स्पेसएक्स क्यों? क्योंकि स्पेसएक्स ने तहलका मचा दिया मार्केट में और उसने बना दिया इलॉन मस्क को द फर्स्ट ट्रिलियनेयर इन द वर्ल्ड. ताजुब की बात है ना. अभी व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट इज दैट एक तो स्पेसएक्स का डेब्यू हो गया $135 में इशू हुआ था, फिर वो कुछ $150-160 हो गया. इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट it has created multi-millionaires out of many of his employees. Can you believe that people holding stock, and it seems Mr. Musk has given shares to many of his employees जो छोटे छोटे रोल में भी थे उनको, and many of them have become millionaires, and some have become millionaires to the extent that they are holding and the current market price is worth $100 million. मतलब ये तो कोई गजब का ही चीज़ है. And it is happening all for the first time in the world, and that is why I took that up as the first news. काश के ये ऐसा कुछ होता. The nearest example I can think of is somebody like Mr. Vaidyanathan, who's the CEO of IDBI, IDFC First Bank, जो अपने सर्वेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपने इर्द गिर्द वाले सबको शेयर बांटते हैं. बट दैट्स अ स्मॉल थिंग, बट स्टिल द माइंड सेट इज सिमिलर. काश के एक दिन IDFC फर्स्ट बैंक भी ऐसा स्पेस एक्स की तरह कुछ बढ़ जाए और उसके साथ जुड़े हुए लोग भी ऐसे मिलियनर्स हो जाए. हु नोस, एवरीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड, राइट?
तो ये एक न्यूज़ था, ज़बरदस्त अजूबा था ये। और ये अजूबा इसीलिए है कि ये इशू के बाद जो इलॉन मस्क है, इज बिकम द ट्रिलियनर। हु यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ द सेकंड गाय? इट इज, आई थिंक, दैट लैरी पेज। ही इज एट सम मीजली 324 billion. Number two, 324 billion, and this guy is 1331 billion. Unimaginable, unimaginable, है ना? बट अपने सामने हुआ है बॉस, एवरीथिंग हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अस. I don't know how old Musk is now, but I am told that he became a billionaire at the age of 42. उसके फोटो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका उसके बाद. फर्ज करो कि ही इज 52 टुडे और वट एवर एज ही इज, और वो हो गया ट्रिलियनर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर. And what? 4 times that of the second richest man in the world. And then you got Jeff Bezos and, all those people. They're all in the 300 billion area. तो अपने भारत देश के भी दो महाशय है वो लिस्ट में. एट आई थिंक नंबर 17 इज गौतम अडानी. उसका कुछ 117 बिलियन है, ऐसा कुछ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. And at number 22 or 23 was our Ambani. Ambani was at about 83 billion. So now we think Ambani and Adani have reached the pinnacle of what can be earned. But ये देखो, ये इलॉन मस्क ने क्या बार को रीसेट कर दिया. माइंड बॉगलिंग. एनीवे, दैट वाज जस्ट समथिंग इंटरेस्टिंग. आपका और मेरे लिए ये एक एस्पिरेशनल चीज़ हो सकता है कि हम भी थोड़ा अपना खुद का बार थोड़ा रीसेट करें अपवर्ड. मतलब जो आज के तारीख में आप हो उसका एक 4 गुना रीसेट करो ना, देखो कहाँ पहुँचते हैं अपन सब. इट्स अ नाइस एस्पिरेशन टू हैव. ओके, second news point which I think is very important and which has all long range impact. US blocks Anthropic Fable 5 Mythos 5 access to foreign nationals. अब ये एंथ्रोपिक जो है ये तो एक तहलका मचा दिया by coming out with its Claude and whatnot and all that. And he rewrote the whole AI script. अब वो लोग ने कुछ नया चीज़ निकाला है. यूएस गवर्नमेंट की तंबू में घबराहट हो गई. बोले ये फॉरेन नेशनल्स के हाथ लग गए तो भैया इधर कुछ और हो जाएगा. तो वो लोग ने कल रात को इस पे बैन लगा दिया और उन्होंने कहा ये कोई फॉरेन नेशनल एक्सेस नहीं करता है. माइंड यू, दिस इज नॉट एक्सेसिबल टू एनीबडी आउटसाइड द अमेरिका. इट इज नॉट एक्सेसिबल टू फॉरेन नेशनल्स हु आर इन अमेरिका. इट इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू फॉरेन नेशनल्स लाइक इंडियंस who are working in big corporations in America. Just imagine, पूरा शट आउट कर दिया. अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे फॉल आउट्स होंगे कि दिस इज ऑल जिंगोइज्म एंड xenophobia इन अनदर टाइप. मतलब फियर ऑफ द फॉरेनर्स, फियर ऑफ व्हाट दे कैन डू. आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग टू एंड और हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ के ऊपर अपने को ध्यान रखना है. ये इसका मार्केट इम्पैक्ट क्या होगा? इसका मार्केट इम्पैक्ट ज़रूर ये होगा कि भाई अपने जो आईटी सेक्टर है उसमें तो ज़रूर इम्पैक्ट होगा. वी हैव बीन कॉपी कैट्स फॉर लॉन्ग, वी हैव बीन बॉडी शिपर्स फॉर लॉन्ग, एंड देन वी हैव बीन डूइंग सम वर्क हियर एंड देयर ऑन एआई. बट अभी एआई के जो एडवांसमेंट्स है वो अपने को शट हो गए. ये तो खैर एंथ्रोपिक का उसने बंद किया है. ये माइथोस भी शायद एंथ्रोपिक का है, मुझे इतना आइडिया नहीं है. बट हुअर इट इज़, इन लोग का बंद कर दिया है एक्सेस. हो सकता है कि कल और भी चीज़ें एक्सेस बंद हो जाए तो दुनिया में एक बार फिर उथल पुथल हो जाए. ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लगता है. तो वो कहाँ जाके ख़त्म होगा मुझे पता नहीं. सो दीज आर टू वेरी वेरी अर्थ शेकिंग थिंग्स विच हैव हैपेंड. चलिए इसको साइड में छोड़िए, इसका कहाँ जा कर के रुकेगा ये मुझे नहीं पता. बट स्टिल वी शुड कीप इट इन द बैक ऑफ आवर माइंड. ऑन अगेन ऑफ अगेन पीस डील, ये तो चल ही रहा है, चल ही रहा है. अभी कल हो गया कि भाई चलो पीस डील इज डन.
मार्केट्स हैव बीन हैप्पी। फ्राइडे को चल दिया, फ्राइडे को ही एक आइडिया आ गया था कि पीस डील होने वाला है। अब मंडे को आ गया, अनाउंसमेंट आ गया, ईरान की तरफ से आ गया, यूएस की तरफ से आ गया, और मार्केट तो 300-400 पॉइंट ऊपर हो गया, उधर भी ऊपर हो गया। ऑयल की कीमतें घट गई, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने को चाहिए था, पिछले हफ्ते में वो कुछ 95 टू 100 के बीच में चल रहे थे, अभी 85 के आसपास आ गई। और साथ साथ में डॉलर डॉलर भी नीचे आ गया। डॉलर का जो चल रहा था 96 97 जो हो गया था, और शायद पिछले चार्ट्स एंड बियॉन्ड में मैंने डॉलर चार्ट का भी अनाउंसमेंट करके मैंने शायद बताया था कि इसका जो पोटेंशियल है दैट इज स्टिल अबाउट 98 हाफ। ठीक है, वो पोटेंशियल कब आएगा पता नहीं, क्योंकि करेंसी मूवमेंट्स हैपन स्लोली ओवर टाइम। ठीक है, सो उसको भी पीछे रखे अपने दिमाग में। बट फिलहाल the immediate thing is that dollar has taken a retreat, so the rupee has become stronger, 94 point something हो गया है। When can we breathe easy? When it goes below 90? We'll have more to say about it a little later. अच्छा, एक और चीज़ which might also impact our market by way of news वो है कि पब्लिक इशू आईपीओ तो आते रहते हैं, बीच में थोड़ी सी नरमी आ गई थी इस मार्केट में बिकॉज मार्केट्स वेयर अंडर प्रेशर। पर्टिकुलरली ये देखा गया एसएमई सेगमेंट में, जहाँ पर धड़ाधड़ एक के बाद एक इशू आ रहे थे, और वहाँ पर कोई इट हैड रीच सम रिडिकुलस लेवल। सो NSE also got into the act, everybody SEBI got into it and things cooled down. But हाल में ये देखे गया है कि SME IPOs are regaining momentum despite big board lull. तो बिग बोर्ड में लल है, उसके बावजूद एसएमई में आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, रिस्क ऑन आ रहा है। लोग अभी दे आर टायर्ड ऑफ दिस वेरी रेंज बाउंड मार्केट, और लोग इधर थोड़ा बहुत एडवेंचर करने को तैयार हो गए। ये बात अपने को इसमें से रीड लेना चाहिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मार्केट एक एडवेंचर का जगह है, ये इन्वेस्टमेंट का जगह है, ये वेल्थ बिल्डिंग का जगह है, ये इनकम जनरेशन का जगह है। बट यहाँ पर अधिकतर लोग एक एडवेंचर के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं, हॉबिंग के लिए आते हैं, उनका दिल बहला जाता है। दे डोंट केयर इफ दे मेक मनी और नॉट। ऐसे सब बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। सब लोग सोच के आते हैं कि मैं रुपया कमा लूँगा, लेकिन इधर जो ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब में मज़ा आता है ना उनको, तो वो टाइम पास वाले हैं। तो बहुत सारे हैं एडवेंचर वाले। सो मार्केट में जब भी एडवेंचर एनेबल होता है ना, तो मार्केट में तभी तेजी पकड़ता है। ये मेन बात है, इस पे ध्यान रखें। तेजी होने के लिए मार्केट शुड बी इन एन एडवेंचरस माइंड। ओके, तो इसीलिए मैंने वो कहा था। अच्छा, एक आधा और न्यूज़ था विच वॉज रिलेटिंग टू पावर। अब न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, तो अभी मैं हर बार थोड़ी सारी न्यूज़, दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ चैनल। आपको न्यूज़ में इतनी दिलचस्पी है तो आप टीवी देखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा। बट जो अहम न्यूज़ है, मार्केट इम्पैक्टिंग है लॉन्गर टर्म में, और जो मूड माहौल को जो अफेक्ट करता है उसको मैं ज़रा देखता हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो पावर के बारे में बहुत सारा बात है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, सब में तेजी है। सोलार है, ग्रीन एनर्जी है, ऑल्टरनेट पावर है, ये सब है। तो एक न्यूज़ आया था कि यूरोप इज नाउ जनरेटिंग एक्सेस पावर फ्रॉम सोलार। दिस इज ओनली सेट टू इंक्रीज फर्दर। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है सोलर पैनल्स टू द यूएस, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2026 का एंड और अर्ली 2027, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट सब एक्सपायर होने वाले हैं। तो अगर यूएस को एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है, तो यूरोप को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यूरोप में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जाहिर है कि वो लोग और नए नए सोलर पैनल को इंपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिया का क्या स्थिति है? इंडिया का भी सिमिलर स्थिति है। इंडियाज करंट कैपेसिटी इज 20 गीगावाट। ओके,
अभी इसको 2030 तक ये हो जाने वाला है 60। ओके, अब 20 का 60 हो जाएगा। करंट जो 20 है ना, उसका कंजम्पशन इज ओनली 20 GW। जस्ट इमेजिन 10 GW, सॉरी नॉट इवन 20 का प्रोडक्शन है, 10 GW का अभी कंजम्पशन है। 2030 तक जब भी अपना जो कैपेसिटी है वो 60 GW हो जाएगा, तभी भी अपना कंजम्पशन होगा 10 में से बढ़ के 20। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव सरप्लस इन टर्म्स ऑफ generation. तो इट इज मैंडेटरी दैट वी फाइंड न्यू मार्केट्स टू एक्सपोर्ट। तो ये जो अभी इतना हाहू चल रहा है ना, पावर सेक्टर, सोलर, ग्रीन एनर्जी को सब लेकर के, उस पर ये एक सावधानी का पॉइंट है, थोड़ा ध्यान में रहे कि अगर सडनली सब जगह सरप्लस हो जाए। और ये सरप्लस भी क्यों हो रहा है पता है, यहाँ पर्टिकुलरली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये गीगावाट कैपेसिटी तो बना दिया, इसके साथ साथ जो स्टोरेज होना चाहिए ना, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। सिमिलर एक्शन हैज नॉट बीन टेकन। इसके बाद जो इसको ट्रांसमिशन करना है ना, वो नहीं हुआ है। उसके आगे जो लाइंस आने हैं उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। सो देर आर सो मेनी बैक टू बैक थिंग्स विच नीड टू हैपन for this to translate into something very, very powerful in India. In Europe, all these are present, and despite that, they are now in excess production. अच्छा, अभी आप देखिए अपना सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे है? राजस्थान में है, कच्छ में है। दैट इज वेयर द सन इज ब्लेजिंग द मोस्ट। बराबर है। अब राजस्थान और कच्छ में ये अपने अडानी और अंबानी के नए नए प्लांट्स आ रहे हैं। वो लोग दे आर गोइंग टू ऐड फ्रेश कैपेसिटी। तो दैट इज हाउ दिस होल थिंग इज सेट टू राइट टू 60 GW. तो unless the government policy comes where they create facilities or create enablement of BESS जो बोलता है ना, battery storage as a system and all that, and then build those places where they can hold all this generated power and then process it. So you need to have big transformers, you need to have big transmission lines and all of that. So there is no doubt that in the long term this is going to be a fantastic sector. But today let's not rush into it, especially where the valuations are out of whack. इसमें सब ज़बरदस्त तेजी तो हुआ है पिछले 1-2 सालों में। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सभी जगह पावर 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 का बात हो रहा है तो मैं कोई भी स्टॉक किसी भी भाव में ले लूँ। नहीं, थोड़ा सा आप सोच समझ के छांट छांट के लीजिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज लूमिंग अहेड। ऑल राइट, तो अभी प्रॉब्लम क्या था अपना, जिसके बारे में अपन जिक्र भी किए पहले, कि अपना रुपया का जो डिरेलमेंट हो गया है, 11% जो गिरा पिछले साल में, और ये साल में भी थोड़ा वीक ही रहा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया हो गई थी, एंड फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हैज एड्रेस्ड इट। गवर्नमेंट हैज एड्रेस्ड इट थ्रू वेरियस मीन्स। इसके बारे में सब आपको पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। FCNR बॉन्ड जो सब आए हैं, इंडियाज इंक्लूजन इन ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ऐसा वैसा, टू अट्रैक्ट debt more and deposits more, and thereby by getting on all this the rupee will be showed up, and if the rupee is showed up, then the currency weakening will stop and all that positive impact will happen. And if that happens and our earnings quarter 4 के तो ठीक ठाक थे, if they start improving, then we will have a virtuous cycle building up later. But what is happening now? So what I have shown you here is a relative chart of the dollar index with the USD INR. USD INR is in orange, dollar index is in blue. तो अभी आप देख सकते हैं कि USD INR after hitting in the futures it almost hit 100. Okay, in the futures. In spot it went to somewhere close to 97, and in the futures it hit almost 100. और वहाँ से अभी ये पील बैक हुआ है। तो आप इधर देखेंगे तो USD INR has peeled back and now it has started to consolidate. Now from a chartical point of view, this is good. This is good because it has hit a peak and started to consolidate.
अब जो जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं करने के लिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट दे शुड सिट डाउन फॉर सम टाइम विद द USD INR chart and look for what you can do with the short, medium and long term analysis with it. ये आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी मंथ्स इधर आप देखेंगे तो ये बहुत समय से स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेकर के रुपी वॉज इन अंडरगोइंग वीकनेस. फिर इधर एक RBI का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन आया somewhere around 99 in the future. That was somewhere around 93 94 in the spot. तो वो फिर नीचे एक गिरावट आई, उसके बाद तो जोर से बढ़ गया और वीकनेस आई एंड देन इट रीच ऑलमोस्ट 100 इन द फ्यूचर्स. और उसके बाद अभी ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है. साथ साथ में क्या हुआ है कि अभी जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर है, डॉलर में भी एक कंसोलिडेशन का सिग्नल आया है. ये कंसोलिडेशन का क्यों सिग्नल आया है? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन प्रिंट्स वगैरह कुछ बढ़ गए हैं, तो यील्ड में थोड़ा फर्क आ गया है. अब yield was threatening to go to 5% and all that, so there has been a pullback there. So now ग्लोबली मैंने बार बार कहा है कि अभी अपन सिर्फ अपना EPS एंड PE रेशियो ऑफ अपने स्टॉक को देखते नहीं रह सकते, वो दिन तो गए भाई. अभी अपने को ग्लोबल मैक्रोस को भी देखना चाहिए. उसमें डॉलर भी आता है, उसमें USD INR भी आता है, उसके फ्यूचर रेट्स भी आता है, क्योंकि अपना जो ट्रेड है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लगा हुआ है, वो सब हेजिंग में उनको कितना कॉस्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, फॉरेक्स का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज विल इम्पैक्ट फाइनली द बॉटम लाइन ऑफ एवरी कंपनी, राइट? सो दिस इज व्हाट is the linkage to our markets and that is why everybody must know it. अब कितना समझ में आता है कितना नहीं, वो आपके स्किल सेट पे है, आपके नॉलेज लेवल पे है, आप कितना मेहनत करते हैं और आप कितना समझ पाते हैं उस पर. दैट इज़ एन इंडिविजुअल थिंग. इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बट यही कहूँगा कि आप मेहनत ज़रूर करिए कि इसको कोई कुछ हद तक समझ सके, या जो आपको इसके बारे में ज़्यादा बता सके उसके साथ एक बार संपर्क ज़रूर करें. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. बोथ आर शोइंग सम साइंस ऑफ कंसोलिडेशन. So it is likely that the rupee might strengthen a little more because the dollar seems to be a mine to come off. Now the dollar is also linked. The USD index, US dollar index, the DXY, is not measured against the INR. Please mind, it is measured against six other currencies. Primary ones being the euro and the Japanese yen and the CHF and all that. तो उनके साथ में कंपैरिजन में बास्केट ऑफ 6 करेंसीज का DXY बनता है. तो वो भी मूवमेंट के अनुसार ये दिस विल रन. सो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट चार्ट के जरिए अपने को थोड़ा सा हिंट मिलता है कि क्या पॉसिबल है. अच्छा, अगर ये सब नहीं होता है तो यही चार्ट अपने को दिखा देगा. तो अगले चार्ट्स एंड बियॉन्ड में अपन देख लेते हैं कि इसका प्रोग्रेस क्या है. ठीक है, बट दिस इज रेजिंग अ स्मॉल रे ऑफ होप. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. ओके. अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ है अपना FI एक्टिविटी. FIDI में देखिए, ये ऊपर वाला है FI में तो जो अधिकतर तो आपको लाल लाल दिख रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं. DI वाले तो लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं. ये तो ओल्ड स्टोरी हो गया. अभी अपना SIP तो चल रहा है, SIP के जरिए ये लोग लेते जा रहे हैं. FI को इधर लेने के लिए कोई ठोस कारण मिला नहीं है, इसलिए वो बेचे जा रहे हैं. सो कैश मार्केट में कोई विशेष राहत नहीं है. अच्छा, लास्ट में आप बोल सकते हैं कि थोड़ी गति सेलिंग की वो थोड़ा कमी हुआ है, वेयर एज आवर DIs आर कांस्टेंट इन देयर बाइंग. सो गति कम हो जाए और it becomes a trickle, then that will be good news. So this is another thing for you to watch. Charts and beyond में मेरा यही फोकस रहता है कि I can point out to you things that you must watch ahead, because I am doing this once in 15 days, once in 20 days. See, macro data changes slowly, बट माइक्रो डेटा चेंजेस एवरी डे. अपन माइक्रो में फंस जाएंगे ना, फिर अपने को दूर का दृष्टि नहीं आएगा. तो मैक्रो को देखते रहना चाहिए और वहां से माइक्रो को उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने को बिठाना चाहिए.
दैट शुड बी द वे टू गो, राइट। इसीलिए ये एफ आई डी आई का कैश मार्केट एक्टिविटी। अब एफ आई तो एग्जिट मोड में है, तो कहाँ से पुल आउट हो रहा है? एग्जिट मोड में पुल आउट करेंगे तो ये एक छोटा सा कलेक्शन है। तो अभी आप इसमें से एक चीज देखिए, 2016, 10 साल पहले, उसमें इंडिया फीचर्ड इन इनफ्लो, ठीक है, और इंडिया वाज नंबर 9 इन दिस। अब 2026 में पते की बात यह है कि इंडिया तो फीचर ही नहीं करता। सो इंडिया हैज फॉलन आउट ऑफ देयर रडार, which is not good news for us, because we can use their dollars, we can use their buying, and we can use the trend that comes with it. So 2026 में दे हैव सोल्ड 91,000 करोड़। ये फिगर तो रोज बदलते रहता है, ये मैंने लास्ट जब ये स्लाइड बनाया था तब का फिगर है, इससे ज़्यादा होगा। दे हैव द लार्जेस्ट होल्डिंग इन फिनेंशियल्स, द नेक्स्ट लार्जेस्ट होल्डिंग इन आईटी। तो इसी में तो सेलिंग आएगा ना भाई। तो आप इधर देखिए, मनी फ्लो में, नेट आउटफ्लो में कौन सा है? फिनेंशियल सर्विसेज, सबसे अधिक आउटफ्लो तो उधर है। जनवरी मार्च में ये गया 60,000 करोड़, अप्रैल में 30,000 करोड़, अभी मई 1 to 15 में 17,000 करोड़। तो ये तो दबा के बेचे हैं। अब दबा के बेचेंगे तो ये सब तुम्हारे HDFC बैंक क्यों इतना पिटा हुआ है, तुम्हारा कोटक बैंक इतना क्यों पिटा हुआ है, तुम्हारा एक्सिस बैंक क्यों इतना पिटा हुआ है? एक ICICI बैंक कैसे भी करके संभाल लिया खुद को, कोई वजह होगा, दैट यू कैन नो बाय स्टडिंग ICICI बैंक में itself। अच्छा, ये आप देख लीजिए ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अपना तो इधर पिटना ही है, हालत तो खराब होना ही है। फिर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 20,000 करोड़, उसके बाद 4,000 करोड़, अभी 1,600 करोड़, अभी 20,000 का 1,600 करोड़ हुआ। आप बोलेंगे अरे खत्म हो गया सेलिंग। ये इसीलिए हुआ क्योंकि वैल्यू बहुत पिट गए थे। तो वैल्यू इतना पिटे कि अभी बेचने में इतना मतलब नहीं था। बोले चलो Q1 में कोई रैली होगा तो इसमें सब रैली में सेल आएगा। तो अपने को ये भी देखते रहना चाहिए आगे कि रैली में FI का माल आता है कि नहीं, ये सब सेक्टर्स में। इनफ्लो कहाँ है? सर्विसेज में आए, कैपिटल गुड्स में इनफ्लो आया। ये आप देखिए, दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। कैपिटल गुड्स में इनफ्लो आए, ये पहले आए शुरुआत में, तभी बजट के टाइम था। तो बजट में सब अनाउंसमेंट पॉजिटिव थे कैपिटल गुड्स वगैरह वगैरह के लिए, तो वहाँ पर आया। उसके बाद थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ही ढीला पड़ गया, क्योंकि February 27 को वॉर शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट तो ढीला पड़ना ही था कैपेक्स में। और ये मेटल्स एंड माइनिंग, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी गिर गया। सो दीज आर ऑल द एरियाज वेयर द मनी फ्लो हैज बीन गोइंग ऑफ द FIIs, राइट। सो ऐसा एक ट्रैकिंग अपने को करते रहना चाहिए। बट ये क्या, ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये कोई मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं सारा चीज़ जो भी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और सिर्फ मैं उसको, आई एम जस्ट कोलेटिंग इट एंड पुटिंग इट टुगेदर सो दैट इट मेक्स अ लिटिल मोर सेंस and easier for us all to understand, right? So what is to be checked in this, कि भाई whether India makes it back into this list, कि भाई आते हैं कि नहीं, वो बहुत अभी समय है। क्योंकि अपन तो अभी लिस्ट में ही फीचर नहीं कर रहे हैं टॉप 15 कंट्रीज की। सेकंड, ये जो है सोल्ड 91,000 करोड़, वो तो और बढ़ गया होगा, उसमें कोई कमी आ रहा है कि नहीं, वो अपने को देखते रहना है। और ये एग्जिट इंडिया स्ट्रेटेजी में जो उनके बड़ा ओनरशिप है, फाइनेंशियल्स है, IT है, इसमें सब ये जो ट्रेंड है गिरावट का, वो कम हो रहा है कि नहीं, इसको भी आप देखते रहिए। तो दिस विल गिव यू अ फर्स्ट क्लू, ऑलराइट, ऑफ चेंजेस। ओके, तो अभी कैश में बेचते रहते हैं, तो वो लोग इंडेक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में अधिक तक तो दे मेंटेन अ नॉन डायरेक्शनल बायस इन द सेंस दैट इट्स अ कंट्री शॉर्ट अगेंस्ट देयर पोजीशन। तो मैंने several times I have said these are hedge positions against their overall exposure to, let's say, the Asian markets or to emerging markets, etc.
तो अभी अपन ने देखे कि भाई मार्च अप्रैल में दिस net index short position had reached the maximum that was close to 3 lakh contracts or something, 2 lakh 91 या ऐसा कुछ हो गया था. अब भी वो उसके आसपास आया, इट केम टू समवेयर अराउंड 2 lakh 80, 2 lakh 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलिंग. अब रिसेंटली आप देखेंगे तो विद द स्मॉल रैली दैट वी हैव गॉट इन द मार्केट, शॉर्ट कवरिंग तो लगातार आ रहा है. आज मंडे है, फ्राइडे को जो हुआ था मैंने देखा था कि कुछ 8-10 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट की इंडेक्स शॉर्ट शॉर्ट में शॉर्ट कवरिंग हुई थी. और ये सारा के सारा 100% ऑफ दिस वाज इन निफ्टी. नाउ दैट इज अनयूजुअल. द कवर्ड निफ्टी शॉर्ट्स वन वे ऑन फ्राइडे. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो येट, बट गुड न्यूज़ अगेन, थोड़ी सी मार्केट में रैली आई, उसके साथ साथ इंडेक्स शॉर्ट्स में कवरिंग आई. आगे ये सिलसिला आगे चलते रहेगा तो मामला और बढ़िया हो सकता है. अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे तो क्लाइंट एंड डीआई नेट लॉन्ग पोजीशन, वो तो अभी भी नियर द टॉप्स है. क्लाइंट इज नियर द हाई नेट लॉन्ग, डीआई इज नियर द हाई नेट लॉन्ग. ये हमेशा ऐसे ही रहता है. एफआई का शॉर्ट रहता है, क्लाइंट का लॉन्ग ही रहता है. अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है ना, इसमें मैंने देखा है, जितना भी मैंने हिस्ट्री देखा है, कि क्लाइंट और डीआई का पोजीशन जो नेट लॉन्ग रहता है ना, उसमें ही जीत होता है. जीत होता है इन द सेंस कि उसका लिक्विडेशन नहीं आता है, इंडेक्स का शॉर्ट कवरिंग आता है फ्रॉम एफआई. सो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी ऐसा होगा. अभी ये जो प्रो का पोजीशन है, प्रो का पोजीशन थोड़ा सा न्यूट्रलिश है, मिक्स्ड है. अब प्रो इज द स्मार्ट सेट, ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो है, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल है. तो वो भी पोजीशन आप ट्रैक तो करिए, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी आएगा, बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशन. तो यू कैन थिंक दैट द रैली विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट is now likely to extend. So these are pointers for you to look at, right? Okay, let's move on. क्या है? Why are the FIs going and running to the other markets? सबसे अधिक कौन सा है? ताइवान. They are going to Netherlands, they are going to Denmark, they are going to South Korea. यहाँ पे सब भयंकर तेजी हो रहा है. क्या हो रहा है कि 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न आप देखिए, ताइवान में 93%, नेदरलैंड्स में 46%, डेनमार्क छोड़ दीजिए, नोवा नॉर्डिस्क डिड इट फॉर सम अदर रीजन, साउथ कोरिया में 200%. मतलब आपका भारत देश आप देखेंगे तो वी आर -16%, और कोरिया में आपको 200% मिल रहा है, और ताइवान में आपको 100% मिल रहा है. तो वुड दे बी फूल्स टू कीप मनी हियर इन इंडिया? सिंपल है ना, ये तो सिंपल अरिथमेटिक है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. दिस होल थिंग इज रिमाइंडिंग मी ऑफ आवर 99 टू 2000 टेक बूम. क्यों? ये ताइवान, नेदरलैंड्स और ये साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री में इन पर्टिकुलर, ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की वजह से ये बूम है. और वो भी कितना, अपना जो इफ़ यू रिकॉल, जो सब 99 2000 में मार्केट में थे, उनको पता है वी हैड अ होस्ट ऑफ आईटी स्टॉक्स. बहुत सारे अभी नहीं है, बट तभी बहुत सारे थे, एंड दे वर ऑल फ्लाइंग, यू नो. एंड मैं तो था उस मार्केट में, आई वॉज वेरी एक्टिव, एंड वी हैड द टाइम ऑफ आवर लाइफ. आई टेल यू, इट वॉज फैंटास्टिक while it lasted. But we knew it was not going to last. And I'm getting the same feeling here about South Korea and Taiwan and Netherlands. अब देखिए इधर ताइवान सेमीकंडक्टर 1 ईयर रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 99%, एंड इट्स वेटेज इन द इंडेक्स 55%. मतलब 55% इंडेक्स का ग्रोथ, 1 पॉइंट बढ़ा तो ये 8 आना बढ़ेगा. तो क्या है रिलेशनशिप? आप सोच लीजिए कि this is the high weightage. Now if you see in Netherlands, you got something called ASML Holding. These are all Taiwan Semiconductors, ASML Holding and Samsung Electronics, and there's one more company in South Korea called SK Hynix. These are the one, ये 4 ही है. Okay, only these 4. ये पूरा एब्सोल्यूट मेहम चल रहा है उधर. लोग पागल हो गए इसके पीछे.
यंग पीपल, ओल्ड पीपल, रिटायर्ड पीपल, पीपल हु हैव गॉट देयर सेविंग, सब निकाल के वो लोग ये सब शेयर ले रहे हैं। पागलों जैसा उधर तेजी हो रहा है ये सब स्टॉक में। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा बहुत उधर करेक्शन आया है। अब ये करेक्शन है, रिवर्सल है, वो सब तो आगे चल के पता चलेगा। बट 99 2000 का बूम जिसने भी देखा है उनको सब पता है कि हाउ दिस इज गोइंग टू एंड। ठीक है। कंसंट्रेशन, इधर एक नोट भी मैंने डाला है, concentration has worked exceptionally well when the dominant company is aligned with a powerful global investment theme. अब वो चल रहा है, पूरा ग्लोब एसके हाइनिक्स ले रहा है। एसके हाइनिक्स वेंट अप 1200%, 1200%। कैन यू इमेजिन फ्रॉम इन द लास्ट 1 to 2 years? ऐसा भी अपने इधर भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, बट वो फिर फिर कभी उसके बारे में बात कर रही हैं। सिमिलरली ताइवान सेमीकंडक्टर, TSML, ये ASML भी आप देख लीजिए, दे आर ऑल गॉन अप बाय रिडिकुलस परसेंटेज। ASML होल्डिंग 128% इन द लास्ट 1 year 2 year लेंगे तो इसका भी 5 गुना हो जाता है। सो दीज आर ऑल phenomenal returns. 1 year return in Samsung is 356%. Delta Electronics in Thailand is 250%. तो इसलिए मैंने इसको कहा है, इंग्लिश में कहावत है, वन ट्रिक पोनी। मतलब वो पूरा सर्कस में इतने सारे एनिमल्स आते हैं ना, कभी वो हाथी को लेके आके ट्रिक दिखाता है, कभी शेर को ला के ट्रिक दिखाता है, कभी मंकी को ला के ट्रिक दिखाता है। तो ये एक सर्कस होता है जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है। अब फर्ज करो कि आप पूरा सर्कस में एक उसने छोटा सा घोड़ा लेके आया, वन पोनी, और उसके पास एक ही कुछ दिखाने के लिए है, और उसने के लिए एक ट्रिक दिखा के चले गया। तो ऐसा जो फिनोमिनन होता है ना एक सिंगल चीज का, उसको एक फ्रेज आ गया है, इट इज कॉल्ड वन ट्रिक पोनी। मुझे लगता है कि दुनिया में जो ये अभी मोमेंटम चेस कर रहे हैं सारा दुनिया, पर्टिकुलरली ये जो FIs है, while the going is good they make great money, इसलिए मैंने लिखा concentration has worked exceptionally। तो अभी आए, लास्ट मंथ आए, उसके 2 महीने पहले आए, वो लोग भी बहुत खूब सारा पैसा बनाए। बट कहीं ना कहीं तो ये लोग जाके पिटने वाले हैं, जब पिटेगा तब पैसा निकलेगा। तो अपने को ताइवान, नेदरलैंड्स और साउथ कोरिया, इसके मार्केट्स को भी देखते रहना है। ये एक और आपके लिए संदेह है मेरी तरफ से, कीप वॉचिंग देम बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ मनी फ्लो इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। अच्छा, वन ट्रिक पोनी तो बोल दिया। इंडिया में क्या है, रिसेंटली मैं एक कोई CNBC का कोई इवेंट था, उस पर पैनल में लोग सब बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। उसमें कोई एक लेडी थी, दूसरे 2-3 जन थे, शंकर शर्मा भी था उधर, मुझे याद है। वो लोग सब वेरियस थिंग दे वर सेइंग। एंड ये जो लेडी थी, आई डोंट नो हर नेम, आई डोंट नो हर एट ऑल, बट देन द वे शी स्पोक, इट वॉज फैंटास्टिक। उसने बोला यही यही बात, उसने दूसरे एंगल से बताया। बोले यार इंडिया में क्या कमी है, इंडिया में सब कुछ है। यू गॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, यू गॉट कैपिटल गुड्स, यू गॉट every sector, you name it, you got leader stocks, you got other stocks, you got everything is there in India. We are not a one trick pony like all these bloody markets. And that is why she was saying to the FI people there कि भाई you must come to India, Indian valuations have peeled back. Acha, what is holding back? Currency is taking a hit. What is holding back? Valuations are high even today in relative terms। तो इस वैल्यूएशन के बारे में लास्ट चार्ट्स एंड बियॉन्ड में जिक्र किया था मैंने। सो दोज आर स्टिल, दे आर वेयर दे आर, बट देन लुक एट द ब्रेड्थ ऑफ आवर मार्केट। डेप्थ में शायद थोड़ा कम होगा, बट ब्रेड्थ इज फैंटास्टिक। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैडली कॉट विद दिस वन ट्रिक पोनी बिजनेस। तो वो लेडी बता रही थी, आप नेट में सर्च करेंगे कि वो हाल ही में था, पिछले 2-4 दिनों में, लास्ट वीक में था, CNBC का इवेंट था, कोई पैनल डिस्कशन, very good discussion, and one can go and take a look at that. She had made some very good points. So this is the thing I wanted to say. Eventually
16% 1 year return is par for the course. We do not fall too much more than this, except in catastrophe years, COVID, 2008 Armageddon financial. ऐसा सब साल में इससे अधिक गिरता है. बट नॉर्मल जो करेक्शन होता है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ मेजर थिंग, दिस इज पार फॉर द कोर्स. सो नाउ वी शुड बी लुकिंग एट समथिंग. और इसमें आप देखिए, एच डी एफ सी बैंक इज मैंशनड as one of the largest constituent. Compared to all this, look at the size of HDFC Bank, 6.4% only. मतलब ना के बराबर है. और वो भी स्टॉक 31% डाउन है. क्यों? इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, सो लार्जेस्ट होल्डिंग ऑल्सो ऑफ द एफआईज. पहले मैंने बताया, तो इंडिया एग्जिट में फिनेंशियल्स बेच रहे हैं, तो जाहिर है कि एचडीएफसी बैंक को ठोक ठोक के वो लोग ने हालत खराब कर दिया. 31% एक साल का माइनस रिटर्न हो गया. ठीक है. सो इंडेक्स रिटर्न इज 16% बिकॉज द अदर्स हैव रैलीड अराउंड इट. So now this is something for you to remember: recovery in HDFC Bank, recovery in financial, recovery in index. So these are all the pointers from a more macro angle as to how to study the market and keep track of when a bigger trend is taking over. देखिए, ट्रेडिंग तो डे टू डे में होते रहता है. डे टू डे में अपने को ब्रेकआउट्स है, ब्रेकडाउन्स है, उसमें अपन काम करेंगे, 2% लेंगे, इधर 2% लेंगे. वेरी गुड. आपके ट्रेडिंग साइज के अनुसार आपका 2000 बनेगा या 2 लाख बनेगा, तो वो तो बनते ही रहेगा. बट लॉन्गर टर्म में अपने को जो वेल्थ बिल्डिंग करना है, तो उसके लिए ये सब में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और चार्ट्स एंड बियॉन्ड का यही मकसद है. और ये सब जो चीज़ है, इसके बारे में अगेन मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ कि चार्ट्स एंड बियॉन्ड आप अभी तक साइन नहीं किए हो, तो इफ़ यू हैव नॉट साइंड अप एज अ मेंबर, प्लीज़ डू. इफ़ यू लाइक द कंटेंट सो फार व्हाट आई हैव सेड, please do share it with people. Please like and share this content with people. Please join our channel and don't forget to mention it to your friends, because this is absolutely free. It is not going to cost you anything. All right. So let's move forward. अपने जीडीपी का आया फिगर 7.7%. ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है. तो जीडीपी ग्रोथ इज सो अमेजिंग, 7.7%. ये अभी ये रिवाइज स्केल वगैरह में है, तो इसमें तो बड़ा तेजी होना चाहिए साहब, बट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंडिया टॉप कॉर्पोरेट बॉसेस आर हेजिटेटिंग टू बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज. कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. ये वॉर आ गया तो सबको पता है आगे नेक्स्ट क्वार्टर ये वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप देखेंगे तो प्राइवेट कैपेक्स भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट लेड कैपेक्स भी नहीं हो रहा है. दोनों कैपेक्स ये गिरावट आ गए. सो व्हेन दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट इज व्हाई मार्केट में इतना बड़ा तेजी भी नहीं हो रहा. बट गवर्नमेंट इज वेडेड टू मेकिंग कैपेक्स. गवर्नमेंट इज मेकिंग वन अनाउंसमेंट आफ्टर द अदर. प्राइवेट सेक्टर विल हैव टू गेट अप. अभी बहुत सारा चीज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ आपको ट्रैक रखना पड़ता है. ये पीरियोडिकली इस पे न्यूज़ आते रहेगा, इसको ध्यान रखिए. तो दीज आर ऑल द थिंग्स फॉर यू टू कीप ट्रैक ऑफ. नाउ एज एंड व्हेन यू सी कैपेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड प्राइवेट साइड स्टार्ट टू हैपन, then you please understand that the market will get into a better stride upward. Okay, so these are the things. तो फिर अपना निफ्टी क्या कर रहा है, उस पे आता है ना. फाइनली ऑल दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. तो प्राइस में क्या हो रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि भाई समथिंग इज हैपनिंग. क्या था, बॉटम आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है लोअर टॉप लोअर बॉटम सिलसिला, वो सब ये सब कैप्चर करके दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी फॉर अबाउट एटलीस्ट 2.5 years. तो अभी आप देख रहे हैं कि वी आर स्टिल हैविंग दैट लोअर टॉप. अब एक बॉटम तो बना, तो मेरा 2-3 एपिसोड पहले का जो चार्ट्स एंड बियॉन्ड है, उसका टाइटल ही था ड्यूरेबल बॉटम हैज़ बीन मेड. तो ड्यूरेबल बॉटम बनाया था ये 21,200 300 400 जो भी था वो, और वहाँ से जो बढ़ के आया ये 24,500 तक गया. आज हम करीबन 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और थिंग्स आर लुकिंग प्रेटी गुड. अभी डील साइन हो जाएगा. फ्राइडे तक टाइम मांगा है, ईरान ने मांगा. ट्रम्प साहब को तो चाहिए कि आज ही हो जाए,
because he needs that victory, because he's more afraid of the midterm polls that he has to face in the US for the Senate and the Congress. So anyway, so we are about to take on this 24,000 thing, and I had mentioned last time, I had given you a range. तो जा करके मेरा प्रीवियस 1 और 2 एपिसोड्स भी देख लीजिएगा, जहाँ पर मैं ये रेंज्ड ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बात किया हूँ कि कैसे मार्केट को बिहेव करना पड़ेगा फॉर इट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज एंड व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड. सो अगर इसमें मैंने फिर से वही बात दोहराने के लिए, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बॉटम, तो ये पिचफोक है, वो पिचफोक में बराबर मिडिल लाइन में टैप करके हैमर बना के चल दिया. दिस इज अबाउट 50 to 62%, 62% आई थिंक एग्जैक्टली विच केम इन. डेली चार्ट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप है, उस गैप के आसपास जो आएंगे वो गैप आकर के फिल करके ये गया. नॉट जस्ट दिस, तो ये तो हो गया लॉन्गर टर्म में. तो अभी दिस इज जस्ट रीइटरेटिंग व्हाट आई हैव सेड. तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म में अपने पास कोई प्रेडिक्शन नहीं है क्या? हो सकता है. तो अपने को ये जो मूवमेंट है उसको एक पर्सपेक्टिव में लगाना चाहिए. तो यहाँ मैंने क्या किया, 3 एरिया ऑफ द मार्केट को मैंने डिवाइड किया. एक तो किया निफ्टी 50 लार्ज कैप एरिया, दूसरा किया मैंने निफ्टी मिड कैप 150, ये मिड कैप एरिया हो गया, और तीसरा किया माइक्रो कैप 250, ये स्मॉलर टर्म जो टिपिकली 5,000 करोड़ एंड लेसर मार्केट कैप वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो आप देखेंगे तो ये तीनों चार्ट थोड़ा सा दे आर ऑल डिफरेंट. They're all different in the sense that the large cap has taken a hit. Why is that taken a hit? Because the FIs are still selling. FIs are still selling. So this is refusing to get up, right? तो ये चार्ट जो है अपन इधर देखते रहते हैं कि भाई this is the main driver of sentiment. There is no doubt कि this is the main driver of sentiment. But money is also flowing in. अपन ने देखा कि भाई the domestics are buying. तो डोमेस्टिक्स में क्या है, दे मस्ट बी बाइंग इनटू द मिड कैप बिकॉज मिड कैप्स एक्चुअली वेंट अप एंड मेड अ न्यू हाई इन द मंथ ऑफ मे, which is something quite divergent from what the large caps have done. And look at what the micro caps have done. They have also seen some rally, but the previous high is also not exceeded. So इसमें क्या दिखा रहा है कि अभी market has got divided into 3 segments. एक लार्ज कैप है जहां पर एकदम ठोस रीजन होगा तो ही अपने को जाना चाहिए. रिजल्ट्स आए ठीक ठाक थे, उसमें से चंद गिने चुने आइटम सब चले, बाकी सब वहीं के वहीं है. मिड कैप है, सब्सटेंशियली मोर है. हाँ, मिड कैप 150 में 150 स्टॉक ही है, बट आप देखेंगे तो छांट के जो नए लिस्टिंग है जो इस इंडेक्स में नहीं है, वैसे आपको ढेर सारे और मिल जाएंगे. आपको 150 या और 250 शेयर और मिल जाएंगे जो दे आर गोइंग टू बी मिड कैप्स ऑफ द फ्यूचर, राइट? क्योंकि उसके मार्केट कैप वगैरह वगैरह सब अच्छे हैं. तो वैसे शेयर आप ढूंढेंगे तो वहां पर आपको विनर्स जरूर मिलेगा. ठीक है, तो ये एक एरिया है, तो वहां पर आप देख लीजिए. तो ये एक एरिया है जो आपको इंटरेस्ट रखना चाहिए. अभी लार्ज कैप बाय डिफॉल्ट सब लोग जाके लेते हैं, but there are times to buy large cap, there are times to buy mid cap, there are times to invest into micro cap. अब माइक्रो कैप में आइए, अभी भी लोअर टॉप सिलसिला है, लेकिन लोअर बॉटम तो नहीं बनाया. ये भी लोअर बॉटम नहीं बनाया, इसने भी लोअर बॉटम नहीं बनाया. तो इसका क्या मतलब है? कोई भी एनी सेगमेंट ऑफ द मार्केट हैज नॉट बिकम डिसाइडेडली बेरिश. इसका क्या हुआ? एक वॉर हो गया, ऑयल का दाम हो गया दुगना, अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है दैट वेंट फॉर अ टॉस. द होल वर्ल्ड गॉट इनटू डिफिकल्टी बिकॉज गैस एंड ऑयल एवरीथिंग गॉट डिफिकल्ट, बट देन मार्केट्स आर स्टिल रेजिलियंट. तो ये क्लियरली दिखाता है कि एज सून एज दीज विंड्स डिसिपेट, ये जो बादल है काले बादल विच इज लार्जली कॉज्ड बाय दिस बड़ी ईरान एंड अमेरिका वॉर, जैसे वो डिसिपेट हो जाएंगे तो और मार्केट्स, ये तो अपने मार्केट का बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट्स विल स्टार्ट इम्प्रूव. सो दैट इज द गुड न्यूज दैट विच इज फेसिंग अस. अच्छा, इसमें अपने को ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? मिड कैप एरिया में देना है. बहुत सारे विनर्स अभी भी हैं वहाँ पर.
उसको आप ढूँढिएगा, थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, तो थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, बैठे-बैठे घर में आपका टेबल पे आके गिरने वाला नहीं है। तो इसमें आपको मदद करेगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है नियो ट्रेडर, उसके अंदर तरह-तरह के मेथड्स मैंने बनाए हुए हैं और हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको दिखा देंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द गुड स्टॉक्स which are showing you signs that they will go. Now what do you want? आपके पास कितना अनगिनत पैसा थोड़ी है. You need, let us say, one stock per week. Let's say you need 3 stocks per month. इससे अधिक तो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले. उसको रीबैलेंसिंग कर लो, एवरी फोर्टनाइट कर लो, एवरी मंथ कर लो. दो तीन कैंडिडेट मिलने में किधर दिक्कत है. ये कंसिस्टेंटली आपको नियो ट्रेडर कर देगा, ये मेरा गारंटी है. और मेरा शर्त भी ये है कि मेनी ऑफ देम विल परफॉर्म, नॉट ऑल ऑफ देम विल परफॉर्म, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट मेरा ये गारंटी है कि आपको महीने में दो चार स्टॉक तो नियो ट्रेडर हाई प्रोबेबिलिटी वाला निकाल के दे ही देगा. एंड इट इज ऑल डायरेक्टेड, यू कैन डायरेक्ट इट वेर यू वांट. यू कैन डायरेक्ट इट टू लार्ज कैप्स, यू कैन डायरेक्ट इट टू मिड कैप, यू कैन डायरेक्ट इट टू स्मॉल कैप. सभी जगह से जहां हैपनिंग स्टॉक है वो आपको निकाल करके दे देगा नियो ट्रेडर. सो जो नियो ट्रेडर यूजर्स हैं, प्लीज गो एंड चेक दिस फीचर आउट. इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, get in touch with our staff, support staff, attend our support seminars. We hold 2 live seminars every day in the morning and afternoon. We have support sessions. We have training seminars on neo trader, all of them absolutely free. आपको सिर्फ अटेंड करना है और आपकी जानकारी बढ़ाना है. दिस विल बी योर रोड टू सक्सेस. टेक माई वर्ड फॉर इट. वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा लेंथ फॉर यू. हम 3 कदम चल रहे हैं, आप एक एक तो कदम रखिए आगे, फिर देखिए क्या होता है. यहाँ पर जबरदस्त सक्सेस मिल जाएगा अपन दोनों को. ये मेरा दावा है कि आप एक कदम बढ़ाओ, हम लोग 3 कदम आगे बढ़ाएंगे, सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा बॉस, ये मेरा गारंटी है. खैर, तो ये दिस इज ऑल अवेलेबल फॉर यू टू एक्शन थ्रू नियो ट्रेडर. अच्छा, इसके आगे क्या? इसके आगे एक और मैक्रो डेटा मैंने ढूंढ के डाल दिया, ये भी मुझे नेट से ही मिला. एक होता है प्राइस टू बुक मल्टीपल. ये एक फंडामेंटल वेरिएबल है जिसके जरिए ऑल द द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक्स, एनी स्टॉक कैन बी जज्ड. तो ये पूरा निफ्टी का है और उसका लॉन्ग पीरियड एवरेज बीच में ड्रॉ किया हुआ है. ये रेड लाइन जो है ना, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज है. अब निफ्टी प्राइस बुक मल्टीपल हैज फॉलन बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब अभी स्टॉक सस्ते हो गए हैं. इसका मतलब ये है कि ये सस्ते हो गए. तो इसके साथ एक नोट भी लिख दिया. व्हाट डज इट मीन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, जो मैं और आप है. स्ट्रैटेजी राइट नाउ शुडंट बी अबाउट टाइमिंग द एब्सोल्यूट बॉटम. वो भी हम कभी कभी निकाल के देखते हैं, अगला स्लाइड में वो भी दे दूंगा, ऑफ द मार्केट और पैनिकिंग ओवर डेली रेड स्क्रीन. ये पॉइंट नोट किया जाए, बहुत रेड स्क्रीन देख करके आप पैनिक ना हो. इट इज अबाउट रिकग्नाइजिंग दैट द स्ट्रक्चरल स्टोरी ऑफ इंडिया रिमेन्स इंटैक्ट. ये सारे स्लाइड्स में मैंने यही दिखाया आपको कि स्ट्रक्चरल स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट. ऑलराइट, क्लीन अप योर पोर्टफोलियो, वो तो करना जरूरी है, बिकॉज ऑल अलोंग द वे कोई जंक आ ही गया होगा, कोई आपने उत्साहित नौजवान बन के आपने ले लिया, कोई इम्पल्स में ले लिया, कोई गलती कर लिया, टाइम में नहीं निकाला, ऐसे सब बहुत होगा. लीन इनटू डिफेंसिव लार्ज कैप्स, क्योंकि मार्केट इतना मोमेंटम में नहीं है, अपसाइड में नहीं है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव के लिए होना चाहिए, उसके लिए लार्ज कैप्स बेस्ट है. एंड डी लिवरेज हार्ड एसेट्स लाइक इन इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने दिखाया, कैपेक्स वगैरह सब उधर आता है, वहां पर बहुत जबरदस्त डी लिवरेजिंग हो चुका है. बैलेंस शीट्स हैव गॉट क्लीन्ड अप, एवरीथिंग हैज हैपेंड. तो उधर आप ढूंढिए कि डी लिवरेज हार्ड एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द मार्केट हैंगओवर क्लियर अप. अभी वो चल रहा है, हैंगओवर क्लियर अप हो रहा है कि जो वीक हैंड्स है वो सब एग्जिट करने दो. तभी तक थोड़ा क्लीन अप में ये सब वॉलेटिलिटी में, रेंज में घूमेगा, बट द स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग अप एंड द टाइम इज कमिंग, द पार्टी विल रिटर्न. बॉस, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, द पार्टी विल रिटर्न
and this time it will be built on far healthier foundation. बट आप इसका मतलब ये नहीं निकाले कि ये सीधा जा कर के इंडेक्स हो जाएगा 30,000 एक झटके में. दैट इज नॉट व्हाट आई मीन. पार्टी मीन्स व्हाट? समवेयर यू गो एंड हैव अ गुड टाइम. Party does not mean that you dance from 10 p.m. till 4 a.m., get exhausted, get drunk, get pissed. That is not a party. Some people like that. A party is one where you go, you have, relax, meet with friends, have nice chit chat, unwind, tension, mention, सब गोल. तो पार्टी इज गोइंग टू रिटर्न, दैट मीन्स गुड टाइम्स विल गोइंग टू रिटर्न. तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो मैंने पहले बताया ना 7.7% जीडीपी ग्रोथ, यहाँ तो लोग उत्साहित होना चाहिए. बट सब लोग ऐसे मूड बना के बैठे हैं, ऐसे मुंह बना के बैठे हैं कि यार क्या होगा इस मार्केट का, मेरा पोर्टफोलियो का क्या होगा. अरे छोड़ो यार ये सब. पार्टी इज अबाउट टू बिगिन और पार्टी में हैव ऑलरेडी बिगन. इन सर्टन एरियाज ऑफ द मार्केट पार्टी हैज बिगन, यू नो दैट. अच्छा, मैंने वो जिक्र किया इसके हाइनिक्स जो कोरिया वाला चीज़ है, और मैंने कहा वो कुछ 1200% बढ़ गया. बराबर है. आपको पता है इंडियन और मार्केट देयर इज अ स्टॉक विच हैज गॉन अप बाय 1100%. यू नो विच वन दैट इज? दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी. इसी से जुड़ा हुआ है, डेटा सेंटर, केबल, फलाना, ये सब चीज़ जो है ना इससे जुड़ा हुआ है. And in 2 year time frame, Sterlite Technology has gone up by 1100%. यही मार्केट है जहाँ पर अपन सब आंसू बहा रहे हैं और ऐसे ऐसे लंबे थोबड़े बना के घुटने तक लटक गए. उसी मार्केट में ये 1100% कर दिया स्टरलाइट टेक्नोलॉजी. और उसके जो साथ में जुड़ा हुआ है कि एकदम बर्बाद स्टॉक था कई साल पहले, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक देखो 70 का 170. और अभी सब लोग बोलते हैं अरे हिमाचल लेना चाहिए, हिमाचल ये हो जाएगा वो हो जाएगा. उसके ऊपर फंडामेंटल रिपोर्ट्स आ रही आ रही. मार्केट हमेशा ऐसे ही रहता है. दूरदृष्टि वाले कम हैं, जिसके पास समाचार इनसाइड इंफॉर्मेशन वाले हमेशा होते हैं. मैं और आप इसमें से शामिल नहीं है. बट जब वो चार्ट में दिख जाता है ना, तब हमको काम करना चाहिए. तो चार्ट पे अपने को बिलीव होना चाहिए. ये पूरा चीज़ मैं आपको चार्ट्स एंड बियॉन्ड में जो दिखा रहा हूँ, हर चीज़ जो दुनिया में हो रहा है उसको मैं चार्ट्स के जरिए ही दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द चार्ट ऑफ दैट एलिमेंट टेलिंग अस, और कैसे अपने को समझना चाहिए और कैसे अपने को इसके साथ डील करना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड देन सो दिस इज अनदर वन विच इज सेलिंग दैट पार्टी इज रिटर्न. अच्छा, मैंने कहा शॉर्ट टर्म में भी आप मायूस ना हुए. ये मेरा एक ट्वीट है, ये मेरा ट्वीट है 10 जून. बस हाल में मैंने क्या कहा, ज्ञान प्राइस एंड टाइम मैच कमिंग अप फॉर निफ्टी 10 जून. वी वर हिटिंग द स्किड्स ओवर द नेक्स्ट 2 सेशन. मैंने कहा जून 11 और 12, एंड विद अ प्राइस लो एट 22,750-800, तभी 23,000 चल रहा था, 23,000. then Nifty has a good chance of forming a bottom. 22,800 तो पहुंचा नहीं, लेकिन 12 तारीख से 400 पॉइंट ऊपर. आज खुला मार्केट और 400 पॉइंट ऊपर. बस ये टाइमिंग किया जा सकता है इफ यू नो हाउ. एंड व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग ऑल दिस? इतना डिटेल में आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो और आप एग्जैक्ट प्राइस एंड टाइम का फोरकास्टिंग भी कर सकते हो. बार बार मैं ये आप लोग को कहते रहता हूं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस इज द रस है, जो फंडामेंटल्स का जो असली रस है वो टेक्निकल से दिखेगा आपको. आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैक्रो देखो, आप माइक्रो देखो, आप बाकी की चीज़ देखो, एंड यू कम राइट डाउन इनटू इट एंड लुक एट दिस. तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने 10 तारीख को 2 दिन आगे से ही ट्वीट कर दिया कि भाई 11-12 तारीख तक को आपको बॉटम मिल जाएगा, और वो अधिक से अधिक आपको 22,800 जाएगा, उससे नीचे नहीं जाए. ठीक है, प्राइस तो वहाँ तक नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ से 2 दिन में आपको निफ्टी ने दे दिया करीबन 500 से 700 पॉइंट की बढ़ोतरी. दैट इटसेल्फ इज इनफ इफ यू आर अ ट्रेडर. अब ये बिल्ड करेगा, आगे और जाएगा. इट हैज टू डू मेनी मोर थिंग्स.
for it to turn into a bigger thing. वो अपन आगे चलते, we will keep seeing it in future editions of Charts and Beyond. So now it is time for summary. क्या हुआ? In news from around the world, we had on and off news on peace deal. अब ये ऑन आ गया वापस न्यूज़ कि भाई एवरीथिंग इज डन, लेकिन जब तक साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड नहीं होता है और उधर इजराइल शांत नहीं हो जाता है, पता नहीं क्या होगा. स्पेस एक्स का आईपीओ, अनदर अजूबा फॉर द थिंग. आरबीआई एक्शन टू सेव करेंसी डिक्लाइन, इसने तो करेंसी का डिक्लाइन को तो अरेस्ट कर दिया. दैट इज वन थिंग विच हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ. फिर अपन ने देखे कि ये पावर का सिलसिला जो है, दूसरे इधर उधर के समाचार भी देखे. इम्पैक्ट ऑन सेंटिमेंट क्या हुआ? एफआई पे फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी भी बेचे जा रहे हैं. बट इंडेक्स शॉर्ट में वो लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं. अब 7% ग्रोथ इन जीडीपी, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है. इसमें इम्पैक्ट होना चाहिए सेंटिमेंट पे, लेकिन अभी तक इम्पैक्ट आया नहीं. लेकिन इसके ऊपर देखते रहे, क्योंकि 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ अगर आएगा, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑन प्राइसेस ऑन चार्ट, व्हाट डिड वी हैव? हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूस. ये मैंने आपको सारे चार्ट्स में दिखा दिए. बट मोमेंटम ऑन द अपसाइड इज स्टिल लिमिटेड, इसीलिए बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, रेंज बाउंड एक्शन हो रहा है. बराबर है. डाइवर्जेंस अमंग डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, ऑल दिस एग्जिस्ट. बुल मार्केट में क्या है, तीनों साथ में चलेंगे. दैट इज लालम लाली होता है, एवरीबडी इज हैप्पी. यू थ्रो अ डार्ट, पिक अ नेम, यू विल मेक मनी. तो ये सब हो रहे. दिस इज द समरी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए? कंटिन्यू विद अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडर्स. ट्रेडर को अभी कोई उत्साहित नहीं होना है. शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, ले बेच करो, ले भी और बेचो भी. डिप बाय, रैली सेल, और 1-2%, 2-3% जो मिले ले करके जेब में डालो, ख़त्म करो. टुमारोज अनदर डे. जब तक ये सिलसिला चेंज नहीं होता है, ये सिचुएशन चेंज नहीं होता है, ट्रेडर को यही काम करते रहना. इन्वेस्टर कीप इट विद शॉर्ट टर्म स्विंग्स. मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग फॉर एन इन्वेस्टर क्या है? 5% स्विंग, 10% स्विंग. ऐसे जो ट्रेड्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया न्यू ट्रेडर से, ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड्स निकलेंगे जहां आपको 4-5%, 5 से 10% वाले चीज़ बहुत सारे मिलेंगे. तो अभी तक आप न्यू ट्रेडर से जुड़े नहीं हो तो ज़रूर जुड़िएगा. टेक अ सब्सक्रिप्शन, टेक अ 3 month ट्रायल सब्सक्रिप्शन, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. बिकॉज उसके अंदर आपको इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपको इमीडिएटली यू विल गेट टू नो कि भाई दिस इज समथिंग वेरी वेरी वैल्यूबल. और मैंने बोला था कि मिड कैप स्टॉक्स, वहाँ पर अपने को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है. वहाँ पर किस पे करना है? स्टॉक्स विद सम न्यूज़, और कोई इवेंट ट्रिगर होना चाहिए. ट्रिगर होने से ही मूवमेंट आता है, ट्रिगर होने से इंटरेस्ट आता है, ट्रिगर होने से कवरेज आता है. ऑल ऑफ दिस विल हैपन. दो सिटिंग ऑन कैश, जो एकदम डर के मारे कैश पे बैठे थे कि सारे जो ट्रैफिक लाइट्स है वो सब लाइन से ग्रीन हो जाएंगे, फिर मैं गाड़ी निकालूं बाहर. भैया ऐसा तो सिनेरियो आने वाला ही नहीं है. आपका गाड़ी गराज में ही पड़े रहेगा और वहीं पड़े रह के वहीं सड़ जाएगा, गाड़ी बाहर निकलेगा नहीं. सारे ट्रैफिक सिग्नल एक साथ ग्रीन नहीं होने. तो थोड़े बहुत तो ग्रीन हो जाएंगे, तो उसमें गाड़ी निकालो और चलने लगो, तभी कहीं आप जा करके पहुंचेंगे. ठीक है. सिटिंग ऑन कैश कैन कंसिडर पार्लिंग सम कैश इनटू द मार्केट फॉर द लॉन्गर टर्म. तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी किया नहीं जा सकता. अच्छे अच्छे थोड़े लार्ज कैप स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी हैं विनर्स, तो वहां पर जाइए. अच्छे बड़े मिड कैप जो है, क्वालिटी मिड कैप जो है, वहां जाइए. एग्रेसिव स्टॉक्स में मत जाइए. बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया उसमें मत जाइए. Find safer stocks. This is the way to look at it. So, with that, we come to an end of episode number 37. I trust you had some good learning. And if you have been with me on this video till now, I thank you very much. सभी को बताइएगा, आपका फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, शेयर इट विद ऑल द अदर्स. नियो ट्रेडर का साइट को ज़रूर विजिट करिए. अभी तक आप उसकी जानकारी नहीं लिए तो we have marketing webinars, we have training webinars, we have support webinars, सारी चीज़ अवेलेबल है. मेरे पूरे टीम है. I have a 20-30 member support team standing by for you to help you out with NeoTrader, with any difficulty you face in the market. Please take advantage of that.
And this is Dr. Narayan signing off. Until I see you in the next edition of Charts and Beer.